Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 4 Materials, Metals and Non-Metals. In this video, we will understand properties of metals and non-metals. So let us start with properties of metals. Physical properties of metal. First property, metals are ductile. Second, metals are malleable. Third property, metals are sonorous. Fourth property, metals are good conductor of heat and electricity. Metals are generally solid except mercury. Mercury is a liquid. Sixth property, metals have high density except sodium and potassium. Seventh property, metals are hard and strong except sodium and potassium. Eighth property, metals are lustrous means shiny. आइए हम धातु तत्वों के भौतिक लक्षणों को समझ लेते हैं। पहला लक्षण, धातु तत्व डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि धातु तत्वों से वायर बनाई जा सकती है, यानी कि तार बनाई जा सकती है। दूसरा लक्षण, धातु तत्व मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि धातु तत्वों से शीट्स यानी कि धातु तत्वों की चादर बनाई जा सकती है। तीसरा लक्षण, धातु तत्व सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब है कि धातु तत्व जब किसी चीज़ से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जैसे मंदिर की घंटी बजती है उस तरह से। चौथा लक्षण, धातु तत्व ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। पांचवा लक्षण, धातु आमतौर पर सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में रहता है। छठा लक्षण, धातु तत्वों की डेंसिटी यानी कि उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिनका घनत्व कम होता है। सातवां लक्षण, धातु तत्व बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। आठवां लक्षण, धातु तत्व लस्टरस मतलब चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। डक्टिलिटी, metals can be drawn to make fine wires. This property of metals is called ductility. Ductility. Ductility का मतलब है कि धातुओं से तार बनाया जा सकता है, जैसे कि कॉपर वायर। धातुओं की इस लक्षण को डक्टिलिटी कहा जाता है। Malleability. Metals can very well be beaten into thin sheets. This property of metal is called malleability. Malleability. धातुओं को पीट पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, यानी कि सीट बनाई जा सकती है। धातुओं के इस लक्षण को malleability कहते हैं। Sonorous. This property refers to the sound that metals make when they are hit. Metals make a ringing sound when they are struck. Sonorous. Sonorous का मतलब है कि धातु तत्व जब किसी चीज़ से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे मंदिर की घंटी बजती है, बिल्कुल वैसे ही। धातुओं के इस लक्षण को सोनोरस कहा जाता है।
Let us understand physical properties of nonmetals. First property. Nonmetals may be solids, liquids, or gases. For example, carbon, sulfur, phosphorus, etc. are solid nonmetals, while bromine is a liquid nonmetal, and oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. are gaseous nonmetals. Second property. Nonmetals are soft, but diamond, which is the hardest natural substance, diamond is not soft, but diamond is a nonmetal. Third property. Nonmetals do not have luster, means nonmetal do not show shiny nature, but iodine crystals show shiny nature. Fourth property. Nonmetals are not malleable, means nonmetals cannot be converted into thin sheets. Fifth property. Nonmetals are not ductile, means nonmetals cannot be converted into wires. Sixth property. Nonmetals, which are solids and liquids, have low melting points. Seventh property. Nonmetals, which are solids and liquids, have low boiling points. Eighth property. Nonmetals are bad conductors of heat. Ninth property. Nonmetals are bad conductors of electricity, except graphite. And last property is nonmetals are not sonorous, means they do not produce sound. आइए अधातु तत्वों के भौतिक लक्षणों को समझ लेते हैं। पहला लक्षण, अधातु तत्व ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह ऐसे अधातु तत्व होते हैं जो ठोस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। जबकि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु तत्व है जो तरल अवस्था में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह ऐसे अधातु तत्व हैं जो गैस अवस्था में यानी कि गैस फॉर्म में मिलते हैं। अधातु तत्व मुलायम होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा अधातु तत्व है जो मुलायम नहीं होता है, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा कठोर अधातु तत्व है। नॉन मेटल्स यानी कि अधातु शाइनी नेचर के नहीं होते हैं, मतलब चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु तत्व है जो चमकदार होता है। अधातु तत्व मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि उसे पीट पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती। अधातु तत्व डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि अधातु तत्वों से वायर नहीं बनाई जा सकती, तार नहीं बनाई जा सकती। अधातु तत्व जो ठोस अवस्था में होते हैं और तरल अवस्था में होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। अधातु तत्व जो ठोस और तरल अवस्था में होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उनकी जो उबलने की टेम्परेचर है, उबलने की जो तापमान है, वो भी बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी उबल भी जाते हैं। अधातु तत्व ऊष्मा के कुचालक होते हैं और वो बिजली के भी कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु तत्व है जो बिजली का सुचालक होता है। अधातु तत्व टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते, यानी कि वो सोनोरस नहीं होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।